Hello and welcome back to Mech Zone. In the previous lecture, we have already finished with the chapter on clutches and we have also solved some numericals. And from this lecture onwards, we shall be starting with a new chapter, that is brake. Oh, I'm so sorry. Okay. एंड ब्रेक इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अक्सर. अभी गेट 2018 के ही सेकंड सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का, विच वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई विल सिंपली लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए एंड यू आर नोटिफाइड, और आप उस लेक्चर को देख के अपने नोट्स बनाइए और हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा फेसबुक पे भी पेज है वी आर मेक जोन के नाम से, और अब वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी वुड सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक, and the brake is actually classified into 4 main important categories. The first is the mechanical brake. Second is electrical brake. Third is hydraulic brake. Fourth one is pneumatic brake. Okay, and in mechanical brake we are actually having the low power absorption. And the mechanical brake is further divided into 2 types, that is radial brake and axial brake. In case of the radial brake, the force is applied for braking in the radial direction, okay, and in the axial braking, force is applied for braking in the axial direction, okay. And again the radial brake is further classified into 3 categories. The first is the shoe brake, second one is the band brake, and the last one is the band block brake, okay. And the band brake is further divided into 2 categories, that is the simple band brake and next one is the differential band brake. Mechanical brake is a low power absorption brake, whereas the 3 other, that is electrical brake, hydraulic brake and pneumatic brake, are high power absorption brakes. Now we would first define what is a mechanical brake. So a mechanical brake is defined as a machine element which is used to retard a moving member or to bring the moving member into a stationary position or to hold the body at rest, okay. And brake performs the above function by offering a frictional resistance to the moving member by a stationary member like a shoe. तो ये किसी भी मूविंग बॉडी को का मोशन रिटार्ड करने के लिए या फिर उसको रेस्ट पे लाने के लिए एक फोर्स लगाता है, और वो कौन सा फोर्स लगाएगा? इट इज द मेनली फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. तो नाउ आई विल ड्रॉ द डायग्राम. इफ द रोटेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस क्लॉकवाइज सेंस, okay, this is the shoe, okay, and this is actually FR and this is also FR, okay. Now we will discuss about the case 1, and the case 1 is power has been given as P and number of rotations have been given as N, such that power is equals to 2 pi N TF upon 60, where TF is the frictional torque and it will be known, okay. And case 1 is corresponding to a prime mover, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये prime mover होगा. और case 2 अगर हम इसमें डिस्कस करें तो in case 2 we have been given that it is not a prime mover, ठीक है.
प्राइम मूवर नहीं होगा, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लिखा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को एंगुलर टर्म्स में लिख लिया। यहाँ अल्फा जो होगा प्रॉब्लम में आपके नॉन पैरामीटर होगा, एंड टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में भी आपके अल्फा जो होगा वो नोन होगा, टी एफ जो होगा वो नोन होगा। ठीक है, तो यहां पर इस सिंपली न्यूमेरिकल इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉक ब्रेक और द शू ब्रेक। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी में से न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, वी विल नाउ टॉक अबाउट द ब्लॉक और शू break. Okay, so now I will draw the diagram. Okay, this is the point O2, this is point O1, this is point O3. Okay, this entire angle is given as 2 theta, and this is FR. Okay, here we are having the normal reaction R, here we are having the weight W, here is FR, such that this distance is L minus B, and here we are applying the effort and it is represented by P. This is actually called as the lever. Okay, this distance is small c, this distance is also c, and this distance is B, such that this entire was L, this is B, so this becomes L minus B. Okay, now here the direction of friction is same as that of the direction of rotation. मतलब direction of rotation हमारा ये है, तो friction भी हमारा इसी direction में लग रहा है. Okay, and here the short shoe is rigidly attached to the lever. rigidly attached है हमारे liver के साथ में. अब यहाँ पर हमारा निकालना है हमारा effort कितना हमें लगाना पड़ेगा so as to obtain the braking action. ठीक है, यहां पर जो हमारा है Rn, that is the normal reaction, it is actually equals to W. Okay, so I will draw very simple again FPD. So here is the effort P, here is FR, here is Rn. तो ये है सिचुएशन पूरा, and the direction of the friction is same as that of the direction of the रोटेशन. अब हमें क्या करना है, हम इसमें अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे. जो हमारा सबसे पहला है केस जो है 1, उसमें हमने माना है इट इज हिंज्ड अबाउट O1. ठीक है, हिंज्ड अबाउट हमारा O1 है. अगर ऐसा हो गया तो अगर हम व्हील की बात करें तो वहां TF जो होगा वो हमारा नोन हो जाएगा, और TF इज इक्वल्स टू FR into R. ठीक है, where R is actually the drum radius. R is actually the drum radius. और FR क्या हो जाएगा हमारा नोन हो जाएगा, ये भी नोन हो जाएगा, such that FR is equals to mu into Rn. ठीक है, और Rn भी आप यहां से निकाल सकते हैं. Now what we will do is we will take the moment अबाउट O1, और किसका मोमेंट, लेवर का मोमेंट लेंगे अबाउट O1. तो आपको देखेंगे यहां से माइनस FR इंटू सी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, सॉरी अबाउट O1, तो इट विल ट्राई टू रोटेट लाइक दिस. तो माइनस FR इंटू सी माइनस Rn इंटू B.
मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आपका ये भी घुमाएगा, सॉरी हाँ, ये जो एफ आर है इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आर एन इंटू बी प्लस पी इंटू एल, क्योंकि ये जो P है इट इज ट्राइंग टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस P इंटू एल इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको P मिल जाएगा आर एन इंटू बी प्लस म्यू सी होल अपॉन एल। तो ये हो गया आपका पहला केस व्हेन वी आर टेकिंग द हिंज्ड पॉइंट एज O1। ओके, नाउ वी कम टू द केस 2, and case 2 is we are assuming that it is hinged about the point O2. Now the conditions for wheel will be same as before, conditions will be same as before, and for lever I will draw the diagram. This is the effort P acting here, this is FR, okay, this is Rn, this is C, and if this is hinged about O2 then we can see C becomes 0. Okay, now when C becomes 0, in the same equation we will put C is equals to 0, and hence P will come out to be, P is coming out to be Rn into B upon L. So this would be the effort required when it is hinged about O2, and here also we see that P is not equals to 0, and in case 1 we will also see that P is not equals to 0. तो दो केसेस तो हमारे हो गए, और थर्ड जो केस है जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है अब हम वो डिस्कस करेंगे। सो केस 3, केस 3 इज इट इज हिंज्ड अबाउट O3। अगर O3 के अबाउट हमने हिंज्ड कर दिया तो व्हील के लिए तो सेम एज बिफोर, ओके, व्हील के लिए तो सेम एज बिफोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर की बात करें तो एफआर तो हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है, पी भी हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो हमारा आरएन है नॉर्मल रिएक्शन इट इज प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव से कर दीजिए, तो माइनस आर एन इंटू बी प्लस एफ आर इंटू सी प्लस पी इंटू एल इट इज इक्वल टू 0, एंड हेंस पी वुड बी बी माइनस म्यू सी इंटू आर एन अपॉन एल। ओके, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इफ B इज इक्वल टू म्यू सी देन P बिकम्स 0। इस कंडीशन में इट इज कॉल्ड एज सेल्फ लॉकिंग और सेल्फ ब्रेकिंग, हेंस here friction helps to stop, it is also called as self energizing brake. Okay, it is also called as self locking, self braking और self energizing brake। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, वही आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये पूछा गया है फॉर द ब्रेक टू बी सेल्फ एनर्जाइजिंग इट शुड बी हिंज्ड अबाउट O3, O2, O1 या नन ऑफ दीज। तो आंसर था हमारा इट शुड बी हिंज्ड अबाउट O3। यहां इसके अबाउट अगर आपने हिंज्ड कर दिया देन हमारा हो जाएगा ये सेल्फ एनर्जाइजिंग या सेल्फ ब्रेकिंग हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं। इफ B इज ग्रेटर देन म्यू सी, P जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगी हमारी कंट्रोलेबल ब्रेकिंग, मतलब ये ब्रेक को आप कंट्रोल कर पाएंगे, दिस इज कंट्रोलेबल। इफ B इज लेस देन म्यू सी तो P हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और P नेगेटिव मतलब इट इज अनकंट्रोलेबल, it is uncontrollable, और B is equals to mu C, that means P is equals to 0 and hence it becomes self locking। ये हो गया हमारा self locking, ठीक है। and we want self energizing but not self locking। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए self energizing तो चाहिए but not self लॉकिंग, हमें सेल्फ लॉकिंग नहीं चाहिए। ओके, सो
A brake is said to be a self-energizing when moment due to friction act in the same direction as the moment due to effort. मतलब जो effort के कारण आपको moment मिल रही है और friction के कारण जो moment है, दोनों का direction क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. ओके, तो आपका ब्रेक क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जाइजिंग. ये कंडीशन होगी सेल्फ एनर्जाइजिंग की. ठीक है. एंड फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द ड्रम रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द फुलक्रम, देन एंड इफ द ड्रम इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द बेस्ट बिकॉज इट गिव्स द सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक. और ड्रम आपका क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो वो बेस्ट होता है क्योंकि इट इज गिविंग द सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक. ठीक है. और हमें सेल्फ एनर्जाइजिंग चाहिए होता है, सेल्फ ब्रेकिंग कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता. Next point is self-energizing brake should be designed in such a way that they should not give self-locking or uncontrollable locking. मतलब self-energizing को इस तरीके से डिजाइन करिए कि वो self-energizing ही रहे, वो uncontrollable braking या फिर self-locking action ना produce करे. Okay, तो this was all about the theory and now we will do one question which has been asked in the previous examination. And this question is quite important because this is a very simple question, direct formula based. कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें. The effort has been given as 400 Newton. Mu has been given as 0.25. P has been given as, P तो हमें बता दिया 400 न्यूटन दिया हुआ है. This distance is 200 mm. This is 400 mm. Okay, and phi has been given as 300 mm. Phi means the diameter of this drum has been given as 500 mm. Okay, and Rn will be acting in this direction. Okay, Fr will be in this direction. So if we take the moment diagram, so minus Fr into 0. Why 0? क्योंकि ये इसी पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है और इसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं. माइनस Rn into it would be 200 mm. So 200 Rn into 200 upon 1000 क्योंकि मीटर में होना चाहिए, प्लस P into 4 plus 2 600 mm or 600 upon 1000. So from here we can find out Rn is equals to 1200 Newton. Okay, now the drum dia has been given as drum dia, that is phi, it was given as 300 mm, and we know that Fr is equals to mu into Rn. So mu value is given as 0.25, Rn has been given as 1200, so it simply becomes 300 Newton, and Tf is equals to R into Fr. तो Fr है 300 Newton दे दिया गया, multiplied by R has been given as 300. One second, Tf 300 न्यूटन तो हमारा Fr दे दिया गया है. R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी 150 mm. मतलब रेडियस से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है. सो इट बिकम्स 150 अपॉन 1000. सो इट बिकम्स 45 न्यूटन. और हमें यही निकालना था व्हाट वुड बी द फ्रिक्शनल टॉर्क. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. Now we will start with another topic, that is the design of the shoe brake, and that topic we will be starting in the next lecture. So I hope that you people are enjoying our lectures. Do give us your valuable feedbacks and also subscribe to our channel अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है. और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए so that they are also benefited, because everything is available absolutely free of cost on our channel और कोई भी cost आपको पे नहीं करना है. और
अपने कुलीग्स को भी बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में और अपने कॉलेज में भी स्प्रेड करिए ताकि सबको पता चले एंड एवरीबडी इज बेनिफिटेड एट अ लार्ज स्केल बिकॉज दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स फ्रॉम MNIT इलाहाबाद और उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है और अपने आप में काफ़ी मुझे लग रहा है अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे आप लोग का, तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी आप लोग अपने दिक्कत हमसे शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं. सो I hope you will be keep loving us and keep liking our lectures. So thank you so much, and in the next lecture we will start with the design of shoe brake.